Hello everyone. So today's video is meant to give you a little clarity on how things get manifested when we talk about mental health. ऐसे बहुत सारे वीडियोस एंड बहुत सारे ऐसे एक्सर्प्ट्स आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, जहाँ पर डिप्रेशन जैसी चीज़ या फिर मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बोला गया है. So whatever you would get to listen in this video is my version of it, and the only credibility probably that I can carry and I can very well say is because I have read this subject and I have gained a good enough education in this field. I would not want to mention degrees because degrees in my view do not really denote anything. But yes, I have read a lot about it. That's the only credibility that I carry, and one major thing with which I can probably mention all these things which I'll be mentioning in this video with a lot of confidence is because I have had a personal experience, I have learned from it, and I would really want to kind of speak it out and would want to, like in my own way help people if in case you happen to find it helpful. So to start with this video, I would really want to mention a person's name, and this researcher's name is Martin Seligman. If you will read about it, if you have read about it, probably you would know why am I mentioning his name. His study is based on the concept of learned helplessness. Martin Seligman के सब्जेक्ट था एक डॉग, जिस वजह से स्टडी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था. और इस क्रिटिसिज्म की वजह ये थी कि उस डॉग को बड़े ही हार्श कंडीशंस में रखा गया था. अब आई वुड जस्ट वांट टू क्विकली मेंशन व्हाट डिड एक्चुअली हैपन इन दिस स्टडी. दिस डॉग वाज प्लेस्ड इन अ चेम्बर और उस चेम्बर में कोई आउटलेट नहीं था. अब ये डॉग जो था इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक शॉक, आई एम सॉरी टू मेंशन दिस बट येस दैट वाज व्हाट really kind of happened in that particular study and the harsh part of it. So electric shock was administered on this dog and there wasn't any outlet, there wasn't any escape route, so the dog had to forcefully undergo that electric shock and that was repeated many a times. अब बार बार इस अटेम्प्ट की वजह से डॉग also somewhere got used to the fact that he or she, obviously I would rather mention, it will have to necessarily undergo electric shock. In the second phase of the study, when after repeated trials with that electric shock and without an outlet, in the second phase this dog was again placed in another kind of chamber, और उस chamber में there was an outlet and electric shock was administered once again. In spite of an outlet, the dog happened to remain within the chamber. It didn't realize that there was an outlet, it didn't realize that there was an escape route, but probably just because first phase of study में ये चीज़ उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो गया था कि वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसने सेकेंड फेज ऑफ स्टडी में इवन वहाँ पर एक एस्केप रूट था, इसके बावजूद उसने ट्राई भी नहीं किया बाहर निकलने के. एंड दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ Seligman study came to be known as learned helplessness. डॉग ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सीख ली या लर्न कर ली कि वो हेल्पलेस है एंड कोई एस्केप रूट नहीं है, एंड सो इट हैपन टू रिमेन विद इन द चेम्बर इन द सेकेंड फेज ऑफ स्टडी. अब हमें इससे क्या सीखना चाहिए? अगर हम इस चीज़ को ह्यूमन लाइफ पे इम्पोज करें या फिर वहाँ पर इसको इंटरप्रिटेशन इसकी ढूंढें, तो यही सीख में आता है कि देर आर सो मेनी टाइम्स वेयर वी फील दैट हमारी डिफ़िकल्टी जो है ख़त्म ही नहीं हो रही, हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ख़त्म नहीं हो रही हैं, और आफ्टर अ पॉइंट हम ट्राई करना भी छोड़ देते हैं और वी जस्ट हैपन टू बी इन दैट स्टेट कि चलो यही होना है मेरे साथ, मेरा कभी कुछ इम्प्रूव होगा नहीं, एंड सो धीरे 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 करके हम होप भी अपनी खो देते हैं. वी स्टार्ट गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड उस एग्जॉस्शन की वजह से वी विल लूज मोटिवेशन टू मेक थिंग्स बेटर फॉर अस. That is how things happen. This is how learned helplessness can be considered as having an implication in humans' mental health. To be very honest, when we talk about depression, learned helplessness has been seen as one of the major conditions which is there in that
particular state of mind. Now, talking about depression, I would really want to kind of point out certain points. First of all, before delving deep into this concept, I would really want to make this very clear that डिप्रेशन टर्म बहुत ईजीली कोई किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए कि जैसा मुझे फीवर आया या फिर मुझे डिप्रेशन हुआ, लोग इक्वली इस चीज़ को मानने लगे हैं कि जितना सिंपली हम बोल देते हैं कि आई थिंक मुझे फीवरिश फील हो रहा है, उतना ही सिंपली आजकल लोग ये बोलने लगे हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, विच इज़ एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट प्रैक्टिस. क्योंकि when you actually label yourself as having such kind of a symptom, you happen to start believing कि आपको एक्चुअल में वो चीज़ है. Then you will find people surfing the internet के चलो मैं चेकलिस्ट ढूंढता हूँ सिम्टम्स की, शायद ये मेरे में है, हाँ ये पॉइंट में ए मेरे में है, पॉइंट बी मेरे में है, तो मुझे तो डिप्रेशन है ही. और जब आप एक्चुअल में अपने आप को लेबल दे देते हो, आप एक्चुअल में वैसे ही फील करने लग जाते हो. एंड ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम उस कैटेगरी में घुसने की कोशिश करते हैं कि हाँ नहीं, आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कैटेगरी. अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन दिस कि डिप्रेशन आजकल एक ट्रेंड का भी एक पार्ट बन गया है कि इट्स लाइक अ ट्रेंडिंग थिंग कि कोई डिप्रेस्ड है तो वो आजकल ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है. तो अगेन इट्स अ वेरी इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिस. Because the people who are actually undergoing that condition, it's a very severe thing for them. It's a very difficult situation for them. And so it is extremely important to understand कि ये label, ये depression का label इतना easily use नहीं होना चाहिए. Secondly, also I would want to mention beyond this, आप जब इस लेबल को अपने में देखना की कोशिश करते हो, आप सिर्फ अपने आप को डिसीव नहीं कर रहे, आप इवन अपने केयर गिवर्स को डिसीव कर रहे हो कहीं ना कहीं. बिकॉज वो कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हो. इस कंफ्यूजन में ओनली सिवियर थिंग्स कुड हैपन. आई मीन ऑब्वियसली वो चीज़ और ज़्यादा नेगेटिव ही होएगी अगर क्लैरिटी नहीं हुई इस चीज़ की. After this, also I would want to mention there's another very important factor. When you happen to define a particular mental condition, mental disorder, let me say that, it's very much important for you to understand there are certain things which are there in it. आप अपने से पूछो कि मैं डिस्ट्रेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ. वो डिस्ट्रेस जो है वो कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, कितनी बार आपको वैसा फील होता है और कितनी देर तक आपने ऐसा फील किया है. ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि क्या वो कंडीशन आपकी डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रही है, आपको आपका हर रोज़ का काम करने में प्रॉब्लम आती है उस वजह से. ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है. एंड इफ़ the answer to this is yes, it is interfering with your daily functioning, it is getting distressful for you for like major part of the life that you have been kind of living, then it's time that you start noticing things in your in your behavior and you start giving attention to all those things. That's a very important thing. And जब आप attention दोगे तो आप effort भी डालोगे उसको resolve करने का. Now for the people who are genuinely undergoing any such thing, there are a few things which I want to mention to them. First of all, once again I would want to repeat, don't speak about it openly कि मुझे ये डिप्रेशन हो गया है, मुझे ये डिप्रेशन हो गया है. क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब इतने सारे लोगों के सामने जाके वो बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन को उनके सामने वैलिडेट कराते हो कि हाँ ये तो रहेगा ही वैसा या ये ऐसे है ही. और इस वजह से उस कंडीशन को से वापस आना या रोल बैक करना अपने नॉर्मल उसमें बहुत टफ होगा. बिकॉज देन द पीपल वुड नॉट लेट यू कम बैक टू योर नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल स्टेट. ठीक है, दैट्स वन थिंग. देन सेकेंडली, पीपल हु सीक सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड और दे लुक आउटसाइड फॉर सपोर्ट, देयर इज़ नो एंड टू दैट सिचुएशन. यू रियली नीड टू थिंक कि इस आप बाहर जब सपोर्ट ढूंढोगे उसका कोई एंड है या नहीं है. बिकॉज बाहर से सपोर्ट अगेन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, बट द ओनली कंट्रोल यू हैव इज़ ओवर यू योर सेल्फ. आप अपने अंदर उस सपोर्ट को ढूंढो, आप अपने अंदर सोल्यूशन ढूंढो. आप बाहर ढूंढते हो, आप बाहर देखते हो, आप सिर्फ सिम्टम्स को रिजॉल्व कर पाओगे डिप्रेशन के, आप उसके रूट कॉज को नहीं रेक्टिफाई कर पाओगे. और जब तक आप उसके रूट कॉज को नहीं रेक्टिफाई कर पाओगे तब तक
कंडीशन जो है वो रिलैप्स होती रहेगी, बार बार आती रहेगी, बिकॉज आप सिर्फ सिम्टम्स को ठीक कर रहे हो, आप उसके रूट कॉज को नहीं रिजॉल्व कर रहे. तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू correct or resolve the root cause of the problem and not just work on the symptoms. That's one thing which I wanted to mention. The other thing is, there are times when you need to really think about what you have been thinking. आपको अपनी thought process जो है बहुत ज़रूरी है कि आप उसको correct करो. कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है. हमें अपनी thought process को visit करना चाहिए, वापस से देखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल इन डिप्रेशन दे हैपन टू मैक्सिमाइज देयर नेगेटिव्स एंड मिनिमाइज देयर पॉजिटिव्स, विच इज़ अगेन अ वेरी इनकरेक्ट थिंग टू डू. हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को बहुत एग्जैजरेटेड, आई मीन लाइक पीपल हु आर अंडर डिप्रेशन दे हैपन टू मैक्सिमाइज ऑल द नेगेटिव्स दैट दे हैव बीन अंडरगोइंग, कि नेगेटिव चीज़ को बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में वो देखते हैं. They are not doing it intentionally, but it's because of the situation they are in. अब उस नेगेटिव को आप इतने एग्जैजरेटेड फॉर्म में देखोगे तो आप कभी भी ये सोच ही नहीं पाओगे कि कभी कुछ पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है. बहुत ज़रूरी है कि आप रियलिटी चेक लो कि क्या इतना नेगेटिव सिचुएशन है भी या नहीं है, या फिर अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अच्छे से देखो कि अगर 100 में से आपकी एक भी स्ट्रेंथ है और बाकी 99 जो है वीकनेसेस हैं, उस वन स्ट्रेंथ के बल पे भी आप उन 99 वीकनेसेस को इजीली ओवरपावर कर सकते हो. अगर आपको अपनी उस वन स्ट्रेंथ पे बिलीफ है तो यू कैन इजीली ओवरपावर ऑल दोज 99 वीकनेसेस दैट यू माइट बी कैरिंग. दैट्स वन थिंग. And then people in depression, they also tend to use musts and shoulds a lot. I should be loved by everyone. I must get that job, or I must get this thing. जब हम shoulds और musts लगाते हैं, then there is no there's no scope of any other thing happening. When I say I should be loved by everyone, ask yourself why you should be loved by everyone. Why is it necessary to be loved by everyone? Ask yourself that. This is what I call visiting your thought process and correcting it. जब हम अपने आप से पूछेंगे why is it necessary to be loved by everyone, probably you would want to kind of correct your interpretation. क्या हम हर आदमी से जिससे मिलते हैं, क्या हम उसको लाइक या लव कर पाते हैं? नहीं कर पाते. तो हमारी दूसरे से ही एक्सपेक्टेशन क्यों है? तो ये चीज़ समझने वाली है. Of course, then there is another thing which I want to speak about. When I talk about negative outcomes and वो चीज़ बार बार हो रही है रिपीटेडली, आप नेगेटिव, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो डॉग जो कि रिपीटेडली इलेक्ट्रिक शॉक फेस कर रहा था एंड सेकंड चेंबर में उसको ये लगा ही नहीं कि उसकी सिचुएशन बेटर हो सकती है, हम भी वही करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि फुल स्टॉप लगा के एक बार ब्रेक लेके ये सोचने का कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसको करेक्ट कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. देन there's another thing. So basically work on your strengths and minimize your focus on weaknesses. Don't generalize things कि मेरा साथ ये सिचुएशन गलत होगी, अब देखना मेरे साथ सारी सिचुएशन ख़राब होगी. ऐसा कभी नहीं होता. No two situations are similar. So you really need to understand that कि आप रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर टाइम में आपके साथ कुछ ख़राब होएगा. बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझो रादर देन कोई और आपको आके समझाए. So the next time when you think shoulds and musts, please correct that. और ये अपने आप से पूछो कि shoulds और musts में क्यों लगाऊँ. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. आप अपने थॉट प्रोसेस को बार बार असेस कीजिए, उसको सिचुएशन के हिसाब से और अपनी डिस्पोजिशन, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइक्स के हिसाब से चेंज करिए. Also there's another thing which is very very important, which is the only thing that helped me come out of a very difficult situation that I was in. Your will to come out of a situation is extremely important. क्या आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो? सबसे पहले अपने से ये चीज़ पूछो. आपकी विल पावर होगी तो आप 100 ऑड सिचुएशंस को क्रॉस करके यू कैन कम आउट ऑफ अ सिचुएशन. सो इट्स जस्ट लाइक, मैं एक एनालॉजी बना के आपको बोलना चाहूँगी. आप एक दलदल में फंसे हुए हो, आपके पास सोशल सपोर्ट है, वो आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि आप ऊपर की सरफेस देख पाते हो, बट उसके बियॉन्ड वो आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे until you will try to come out of it on your own.
आप अपने आप को नीचे से ऊपर पुश नहीं करोगे तब तक वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे ऊपर लाने के लिए। तो हम सोशल सपोर्ट पे एक लिमिट तक डिपेंड कर सकते हैं। आपकी विल पावर इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। आप जब तक अपनी विल से उस सिचुएशन में बाहर नहीं आना चाहोगे, जब तक आप अपने आप को समझा के उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहोगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। आपको कोई भी ना गाइडेंस काम आएगी, ना कोई चीज़ काम आएगी। तो इसलिए आपको अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि आप उस चीज़ से बाहर आने के लिए रेडी हो। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर डेस्टिनेशन, अबाउट व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, प्लीज़ ट्राई टू असेस योर विल पावर कि आपकी विल पावर कितनी है स्ट्रॉन्ग। मुझे कोई एक चीज़ में मैं जब फंसी थी तो दैट वाज अबाउट 6 years आई वाज स्टक इन दैट सिचुएशन एंड आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट, आई फेल्ट आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट, बट आई कुड नॉट रियली मैनेज। मुझे बहुत सबका सपोर्ट मिला, बट तब भी वो 6 साल जो थे मैं नहीं उस चीज़ से बाहर आ पाई। बट it just took me 10 days to come out of it, and those 10 days the only thing that worked for me was the fact that I had decided to come out of it. इन 6 साल प्रॉब्ली मैं उस चीज़ से बाहर आना ही नहीं चाहती थी, बट उन 10 दिन में मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली हैपन टू कम आउट ऑफ इट. सो इट जस्ट टुक मी 10 days versus 6 years. 6 years because my will wasn't there. 10 days there was my willpower which was helping me out. तो इन 10 दिनों में उन सिचुएशन से बाहर आने का मेरी पॉसिबिलिटी बनी. तो इस वजह से आपको ये चीज़ अपने माइंड में बहुत क्लियर रखनी है कि आप में विल है टू कम आउट ऑफ इट या नहीं. सो आई वुड क्विकली वांट टू काइंड ऑफ समराइज विद दीज पॉइंट्स दैट अपनी थॉट्स को क्लियर रखो, अपने इंट्रोस्पेक्ट अ लिटिल. इंट्रोस्पेक्शन बोलना एक्चुअली में बहुत ईजी लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करना बड़ा फैंसी वर्ड है, बट एक्चुअल में आपको रियली सोचना चाहिए कि आपको क्या फील हो रहा है. क्लैरिटी नहीं मिल रही तो एक वैसी इमोशनल एंकर से बात करो कि मुझे ये चीज़ फील हो रही है, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ. तो ये चीज़ करना ज़रूरी है. नेगेटिव्स को मैक्सिमाइज़ करना बंद करो, शुड्स एंड मस्ट्स लगाना बंद करो कि आई शुड बी लव्ड बाय एवरीवन. नो, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी लव्ड बाय एवरीवन. एंड अपने लिए कुछ ऐसे कंडीशंस ऑफ वर्थ लगाना बंद करिए. एक चीज़ छोटी से छोटे गोल्स बनाओ, पहले वो चीज़ पूरे करो एंड देन मेक लॉन्ग टर्म गोल्स. सो दिस वाज माय से इन दिस सिचुएशन. आई होप आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिले. तो आई वुड फील कि मैंने थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से सीख के किसी और को बताया. एंड कोई भी और क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो प्लीज़ राइट टू मी ऑन माई email ID which I'll be sharing with you people. Thanks a lot for listening to me, and it's extremely important to express, so please start expressing yourself. Thanks a lot. Thank you.